everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your this week's class of Current Affairs of Science and Technology. So let's get started and have a look at the various issues that we'll be covering today. So first of all, we'll talk about Parker Solar Probe. पार्कर सोलर प्रोब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे हाउ दिस पार्कर सोलर प्रोब हैज़ हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू गेट अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल नॉलेज अबाउट द ज़ोडिएकल क्लाउड. तो ज़ोडिएकल क्लाउड क्या है और नासा ने इसके बारे में क्या जानकारी इकट्ठी की है, हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में. Then we'll talk about the next news which says that US is discussing launching of a formal review to know whether the stable coins pose a threat to financial stability. So इस basic news में हम बात करेंगे what are stable coins and how do they pose a threat to the financial stability. Then we'll move to 5G technology. 5G technology where Vodafone Idea has claimed to have achieved a peak 5G data speed. तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इस कंपनी ने इस हाई स्पीड को ऑब्टेन किया है, इस खास न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट नासाज वाइपर मिशन जो कि लॉन्च होना है 2023 में और इसने अपनी लॉन्चिंग साइट डिसाइड कर ली है. तो नासाज वाइपर मिशन की लॉन्चिंग साइट क्या होगी अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे. Then in the next news we'll talk about sea cucumbers. Sea cucumbers क्या है, sea cucumbers कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हेल्प करते हैं और क्या काम करते हैं हमारे मरीन इकोसिस्टम में, ये जानेंगे हम. क्यों और ये सी क्यूकम्बर्स न्यूज़ में क्यों रहे, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज किए हैं 2 tons ऑफ दीज एंडेंजर्ड सी क्यूकम्बर्स वर्थ ₹80 million. सो सी क्यूकम्बर्स कैसे मरीन इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं हम जानेंगे अपनी इस न्यूज़ में. Then we'll talk about the Li-Fi network. Li-Fi network क्या है और Li-Fi network कैसे हेल्प करेगा, कैसे बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा देन Wi-Fi. और Li-Fi नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है इन इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट इन लद्दाख. तो ये इंस्टीट्यूट कौन सा है, Li-Fi टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे काम करेगी, इन सब चीज़ों को जानेंगे. So without wasting much of time, let me start with the very first news which is about Parker Solar Probe. So scientists have used the data from NASA's Parker Solar Probe to get a complete picture of the structure and behavior of the zodiacal cloud. So अब हम जानेंगे zodiacal clouds हैं क्या. Zodiacal clouds are nothing but these are just interplanetary dust clouds. और ये डस्ट क्लाउड्स अराइज होते हैं ड्यू टू एस्टेरॉयड कोलिजन्स और सम कॉमेट्री एक्टिविटी, राइट. और ख़ास बात ये है कि ये डस्ट पार्टिकल्स, ये ज़ोडिकल क्लाउड्स स्कैटर करते हैं सनलाइट को एंड दीज कैन बी सीन विद द नेक्ड आई. बट ऑब्वियसली टू सी दीज वी नीड वेरी डार्क प्लेसेस क्योंकि क्लियर नाइट्स में एंड इन द मून लाइट और इन द लाइट ऑफ द सिटीज़ दीज ज़ोडिकल क्लाउड्स आर नॉट विजिबल. So these zodiacal clouds basically have a very particular structure. They are thick near the sun and they are thin near the edges of the solar system. But they can be seen with the naked eye. So zodiacal clouds क्या है, basically आपको ये पता चल गया. These are interplanetary dust particles. अब नासा ने जो इनके बारे में पता किया है वो है 3 different populations of these zodiacal clouds. सो फर्स्ट ज़ोडिकल क्लाउड्स को नाम दिया गया है अल्फा मीटेरॉइड्स. अब अल्फा मीटेरॉइड्स क्या है, दीज आर बेसिकली स्मॉल ग्रेन्स ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स विच आर स्लोली पुल्ड इन टुवर्ड्स द सन. अपार्ट फ्रॉम the second population of this cloud is named as beta meteoroids. Beta meteoroids are generally generated when the grains of this cloud which is swirling around the sun gets broken into smaller fragments. और ये smaller fragments they are pushed out of the solar system in all directions. So remember, the alpha meteoroids are pulled in towards the sun, whereas these beta meteoroids are scattered out. They are pushed out of the solar system in all directions because of the pressure from sunlight. Apart from that, there is a third group. और थर्ड ग्रुप तब बनता है जब इन्हीं ऊपर वाली 2 populations टकराती हैं किसी कॉमेट की डेब्रिस से. आफ्टर अ कोलिजन विद द कॉमेट डेब्रिस द above 2 classes give rise to the third particular class of this zodiacal cloud which has a distinct wedge shape.
राइट तो आपको ये समझ में आ गया कि इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल्स हैं क्या, ये जॉर्डिकल क्लाउड्स क्या हैं और ये जनरेट कैसे होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नासा द पार्कर प्रोब हैज given us a complete picture of the three different groups of this of the populations of the zodiacal cloud. थोड़ी सी बात कर लेते हैं नासा के इस पार्कर सोलर प्रोब का, जो बेसिकली हमारी सन की अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विल बी गोइंग मच क्लोजर टू आवर ओन स्टार. सो मच सो क्लोजर कि आज तक इससे पहले इतना क्लोज कोई नहीं गया है. इट विल बी पासिंग थ्रू द Mercury's atmosphere and about 3.9 million years इसके पास से गुजरेगा, and it would help us to get a complete knowledge of the sun. So इस नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बेसिकली 3 साइंस ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द सोलर कोरोना एंड सोलर विंड. उनके अंदर एनर्जी कैसे फ्लो होती है उस जानकारी को इकट्ठा करेंगे. देन स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझने में मदद करेगा रिगार्डिंग द प्लाज्मा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलर विंड. It will also help us to know and understand how these particular particles accelerate and they are transported in the solar corona. सो पार्कर सोलर प्रोब क्या है, पार्कर सोलर प्रोब हमें हेल्प कैसे करेगा, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. जस्ट अ ब्रीफ व्यू टू लेट यू नो व्हाट वुड पार्कर सोलर प्रोब डू. Right, so this was basically where we'll come closer to the sun and we'll have a complete insight into how the energy is generated in solar corona and how solar winds are caused. Right. So next we move on to the second news, which is when US is discussing to launch a formal review whether these stable coins are pose a great threat to financial stability or not. So basically ये जानना चाहते हैं हम कि क्या ये actually stable coins stable हैं भी या नहीं. पर न्यूज़ से पहले हमें इसमें क्या समझना है, हमें समझना है what is a stable coin. So stable coin is a type of cryptocurrency जो कि स्पेशली पेग्ड है टू एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी, यानी कि इट इज़ ऑलमोस्ट लिंक्ड टू सम फिएट करेंसी सच एज डॉलर्स, येन्स और यूरो. राइट और आज जितने भी हम स्टेबल कॉइन्स जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर लिंक्ड टू डॉलर्स. सो बेसिकली प्राइस ऑफ दीज स्टेबल कॉइन्स फ्लक्चुएट्स वेरी लिटिल क्योंकि ये फिएट करेंसी के साथ लिंक्ड हैं एंड दे आर मच स्टेबलर दैन अदर cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. बट साथ ही साथ इनके साथ और भी रिस्क एसोसिएटेड हैं. ये हेल्पफुल तो है ही हैं एंड हेल्पफुल इसलिए हैं बिकॉज दे अलाउ द पीपल टू ट्रांजैक्ट more seamlessly as compared to the other cryptocurrencies such as bitcoins. So these basically stable coins form a bridge between the old world money and the new world crypto. और यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट आप याद रखेंगे, द फर्स्ट स्टेबल कॉइन दैट वाज क्रिएटेड वाज टेथर एंड इट वाज क्रिएटेड इन 2014. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी हैव गॉट फिएट कोलेटरलाइज्ड stable coins, commodity collateralized stable coins, crypto collateralized stable coin, and then non-collateralized stable coin. As the name indicates, fiat collateralized is a stable coin that is associated and pegged with the fiat currency. Then there is commodity collateralized stable coin, which is linked to certain commodity. And crypto collateralized is linked to the other cryptocurrencies available such as Bitcoin. So non-collateralized is not associated with any of the already existing coins or already existing commodities. So these are basically not stable at all, not trustworthy at all. So स्टेबल कॉइन्स क्या हैं, स्टेबल कॉइन्स कैसे हमारे इस गैप को ब्रिज करने वाले हैं, इस बारे में आप जानेंगे. और अब सारी अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं, स्पेशली यूएसए इज़ ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ कंप्लीट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू हैव अ चेक ऑन दीज स्टेबल कॉइन्स, राइट. Now I move on to the next news, which talks about Vodafone Idea, and Vodafone Idea has claimed to have achieved a peak 5G data speed of about 3.7 gigabps on the wave spectrum. So millimeter wave spectrum पर 3.7 Gbps की speed achieve की है Vodafone Idea ने. So this peak download speed could be up to 1.5 Gbps, and this has been arranged in Gandhinagar and Pune, जहाँ हम इतनी हाई स्पीड्स
अचीव करने की बात कर रहे हैं, वहीं ये समझना भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ 5G नेटवर्क. सो 5G network is basically a next generation mobile broadband that will eventually help us to have an advantage over existing 4G bands. So benefits क्या हैं? First of all, this 5G technology will operate in the millimeter wave spectrum. It will operate in millimeter wave spectrum and thus will have an advantage of sending large amounts of data at very high speeds. जहाँ हम high speeds की बात कर रहे हैं up to 3.7 gigabits per second की, right? Then this 5G technology will operate in 3 bands, namely low, mid and high frequency, and would help us to reduce latency. And this would be of great help when we are talking about the devices that are all internet dependent. Internet of things की बात करें, artificial intelligence की बात करें, so this 5G technology would help us to support all these technologies. And obviously it will minimize the impact of load spikes जो अब स्पॉटिंग इवेंट्स में या न्यूज़ इवेंट्स में हम सफ़र करते हैं लेटेंसी से. दिस वुड हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दैट, राइट? सो 5G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प करेगी? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस 5G टेक्नोलॉजी. अभी तक एज फार एज द रिसर्च गोज देर इज नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट लिंक्ड टू दीज वायरलेस टेक्नोलॉजीज. बेसिकली जो risks associated हैं, they are associated with the tissue heating, जहाँ पर यही रेडियो फ्रिक्वेंसीज इंटरफेयर करती हैं ह्यूमन बॉडी के साथ. बट when the radio frequency exposure levels are so negligible, then there would be no such problem such as tissue heating. और जितनी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी उतना ही पेनिट्रेशन कम होती जाएगी ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ के अंदर. एंड दिस पेनिट्रेशन वुड जस्ट बी कन्फाइंड टू द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी सच एज स्किन और अदर एक्सपोज सर्विसेज सच एज आई. सो ओवरऑल एक्सपोजर अगर बिलो द इंटरनेशनल गाइडलाइंस रहेगा, सो देयर वुड बी नो हेल्थ हजार्ड्स पोज्ड बाय दिस 5G टेक्नोलॉजी. अब मैंने बात की इंटरनेशनल गाइडलाइंस की, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कौन सेट करेगा? इंटरनेशनल गाइडलाइंस आर रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन and the Institute of Electrical and Electronics Engineering, right? So these guidelines basically technology specific नहीं हैं. They cover all the radio frequencies up to 300 gigahertz, including that come under the 5G technology. Right, so 5G technology क्या है, potential health risks क्या है, and what are the guidelines, who provides us the guidelines regarding the exposure to these electromagnetic waves, right? Now I move on to the next important news, which is about NASA's Viper mission. NASA's Viper mission, which is set to be launched in 2023. अब नासाज वाइपर मिशन न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसने चूज़ कर लिया है अपनी लैंडिंग साइट. And this site is on the western edge of Nobel crater near the lunar south pole. तो मून के साउथ पोल पर नोबेल क्रिएटर की अब लॉन्चिंग साइट बनेगा नासाज वाइपर मिशन का. एंड दिस क्रेटर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोलर एक्सप्लोरर अम्बर्टो नोबेली. सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे. द लैंडिंग साइट हैज़ बीन चोजन टू बी नोबेल क्रेटर विच इज़ लोकेटेड नियर द लूनर साउथ पोल, एंड दिस क्रेटर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन पोलर एक्सप्लोरर दैट इज अम्बर्टो नोबेल. All of us know this NASA's Viper mission is set to be launched in 2023, and basically it will help us to understand if it is possible for human life to sustain there using the locally available resources. क्या चांद पर अवेलेबल रिसोर्सेज से हम वहाँ ह्यूमन लाइफ सस्टेन करा पाएंगे? सो दिस इज़ द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस वाइपर मिशन. एंड दिस वाइपर मिशन, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और जान लेते हैं. ऑलरेडी हम वाइपर मिशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं. सो वाइपर इज़ बेसिकली अ मोबाइल रोबोट जिसमें पहली बार हम रिसोर्स मैपिंग कर रहे हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की. And NASA's commercial lunar payload services, that is CLPS, will be providing the launch vehicle, and this is going to be a 100-day mission, right? The objectives of this mission include to explore the moon's south pole,
help create the resource maps of the moon, and then helping us in evaluating the concentration of water and other potential resources. So for the first time हम किसी celestial body के potential resources को map करेंगे और उन्हें utilize करेंगे ताकि हमारे further programs, जैसे कि नासा यहाँ पर चाहता है ताकि अंडर द आर्टिमिस प्रोग्राम फ्यूचर लैंडिंग साइट्स जहाँ पर पानी और रिसोर्सेज अवेलेबल हो, पानी और ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज जो मून पर हैं उन्हें हार्वेस्ट किया जा सके, सो दैट द ह्यूमंस कैन एक्सटेंड देयर स्टे ऑन द मून. सो सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन वाइपर 2023 में लॉन्च किया जाएगा और लैंडिंग साइट इसकी डिसाइड हो गई है, दैट इज नोबेल क्रेटर. So I'll move on to the next important news where we'll talk about sea cucumbers. So the news says Indian Coast Guard seizes 2 tons of endangered sea cucumbers worth rupees 80 million. So sea cucumbers basically they belong to the invertebrata and they belong to phylum Echinodermata. Echinodermata means the spiny skinned animals. So marine invertebrate है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. They have spines on their skin. So they belong to the phylum Echinodermata, and most important, they play a great role in maintaining the health of our marine ecosystems. और इंडिया में सी कुकुम्बर इज ट्रीटेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. जनरली इनकी जो तस्करी की जाती है दैट इज डन फ्रॉम इंडिया एंड Sri Lanka. So they are smuggled from Tamil Nadu and Sri Lanka, and they are in great demand in China and Southeast Asia, जहाँ पर इन्हें consume किया जाता है as a food, and they are also used in medicines. राइट. तो सी कुकुम्बर्स हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं. वो क्यों ज़रूरी है? लेट्स हैव अ लुक एट दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो बाय एक्सक्रीटिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये सी कुकुम्बर्स बेंथिक एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो ओशन फ्लोर पर सर्वाइव करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं. राइट. इन्हीं सी कुकुम्बर्स की डाइजेशन से एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. And this calcium carbonate is a key component of the coral reefs. So coral reefs को survive करने के लिए calcium carbonate की ज़रूरत है, and these sea cucumbers play a vital role in their preservation. Also, these are called as the cleaning agents of the marine ecosystem. They maintain the transparency of seawater by eating away the sewage. Important एक और चीज़ याद रखने वाली है, इन सी कुकुम्बर्स की फीडिंग एंड एक्सक्रीशन से रिलीज होते हैं अल्कलाइन फ्लूइड्स. सो ये अल्कलिनिटी रिड्यूस करती है, काउंटरएक्ट करती है, विच इज़ काउंटरएक्ट्स द ओशंस एसिडिफिकेशन. हमारे ओशंस एसिडिफाई हो रहे हैं ड्यू टू द पॉल्यूशन. सो इस एसिडिटी को कम करते हैं सी कुकुम्बर्स द्वारा रिलीज किए गए अल्कलाइन फ्लूइड्स. Right. So these are very, very important for the marine ecosystem, so they must be preserved. Right. Now the next news talks about the Li-Fi network for faster internet. तो इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट इन लद्दाख, नेमली द Students Educational and Cultural Movement of Ladakh has become the first institute of its kind to have an internet connection using Li-Fi technology. तो सेकमॉल पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जहां Li-Fi दैट इज लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी टू हैव फास्टर इंटरनेट. और ये सेटअप दिया है अहमदाबाद बेस्ड नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. राइट. एंड दिस company is the only company that is licensed or registered company for the Li-Fi sector in Asia. So basically Li-Fi क्या है? Li-Fi means transmitting data with a light beam. यानी कि एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स यूज़ करके हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे इन ओपन स्पेस, इन आउटडोर एंड इनडोर एनवायरनमेंट्स. सो दिस प्रोवाइड्स अल्ट्रा फास्ट डाटा कनेक्शंस स्पेशली इन अर्बन एरियाज़. अब अर्बन एरियाज़ में क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेडियो स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, और रूरल एरियाज़ जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स और नेटवर्क्स इतने रीचेबल नहीं है, वहाँ Li-Fi टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करने वाली है.
So with this Li-Fi setup, it is said the faculties and students would get faster and safer internet connections. राइट बहुत ज़्यादा फास्ट कनेक्शंस मिलेंगे जो उनकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगे, उन्हें बेनिफिट करेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में एंड इम्प्रूविंग देयर स्किल्स. यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. दिस सेकमॉल्स फाउंडर इज सोनम वांगचुक, जो कि ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कंप्लीट इंटरनेटवर्क, फास्टर, फ्लॉलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, राइट. And this would be possible with the Li-Fi network. So Li-Fi network क्या है, how will it work, और कौन सी जगह पहला, कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा पहला है जहाँ पे Li-Fi नेटवर्क मिल गया है, उसका नाम आप याद करेंगे, that is SecMol. So Li-Fi टेक्नोलॉजी बेसिकली काम करती है by the light bulbs that will help us in transmitting data, right. So that's all for this week's current affairs of science and technology. I'll see you again next week. Until then, bye. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया then do subscribe to our channel. And if you're serious for UPSC 2022, then आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं. कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.